is that New Delhi Police District, we have identified it as a controlled zone. That is on that will continue on 8th, 9th, 10th. On 10th, slight addition is also there because of the visit of the head of the state and head of the governments and other heads of the international organizations to the Rajghat. So there are certain additions till the Rajghat area, and especially the Gita Colony, till the Gita Colony junction, including the Bahadur Shah Jafar Marg and JLN Marg. So for those about 6 to 7 hours, that area also will become for a brief period the controlled zone number 2, where will be our restrictions will come in place. And in this controlled zone, what we have done is we will be implementing a graded traffic management plan, that is on night of 7th and 8th, intervening night of 7th and 8th. Commercial vehicles, that is high goods vehicle, medium goods vehicle, light goods vehicles, will not be allowed in Delhi borders. However, essential services, essential goods which will be carried in these vehicles and have valid no entry permissions will be honored. There is one slight addition to this is from the Rajokri border, that is from Gurgaon side, Gurugram side. The buses and the ISBT buses, the control of these buses which we will be implementing from the 5 o'clock in the morning of the 8th of September, these buses will not be allowed from Rajokri side. They will be diverted from Rajiv Chowk and IFCO Chowk towards MG Road, and from there they will enter through Mehroli, and wherever their destination is, whether it is ISBT Anand Vihar or Sarai Kalekha or Kashmiri Gate, that movement will go without any obstruction. And this controlled zone will not have the facility of the city bus services, which will terminate at the ring road mainly, and those termination points have also been mentioned in our traffic advisory. We have coordinated with DTC also to ensure that the last mile connectivity is also available to the vehicle in case people are boarding down from the buses and they want to take the metro stations and the other mode of transport. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स विल रिमेन अफेक्टेड सर? अगर ब्रॉडली लोग जो है कंफ्यूजन इस केस में है कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा एरिया ज्यादा अफेक्टेड रहेगा? वैसे तो मान लिया सर सिर्फ 10 तारीख को कुछ पीरियड के लिए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अफेक्ट रहेगा, बाकी जो है सभी सामान्य रूप से चलेंगे। देखिए, हमने पहले बता दिया है कि 8, 9, 10 तारीख को राजकीय अवकाश है। जो नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट में जो है मार्केट्स और कॉमर्शियल एक्टिविटीज पर जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी दिल्ली में सामान्य रूप से सभी एक्टिविटीज जैसे चलती आई हैं पहले की तरह चलेंगी। हालांकि जो साकेत में जो शेरेटन होटल है या ग्रैंड होटल है वसंत कुंज में, जो जैसे पहले जो वीवीआईपी मूवमेंट्स होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस ब्रीफ पीरियड के लिए मूवमेंट के दौरान में या उससे 15 मिनट या आधा घंटा पहले जो रिस्ट्रिक्शंस रहती है और जो ड्रिल होती है लोकल पुलिस की, वो उसी हिसाब से चलेगी। इसी तरह से एरो सिटी में जो होटल्स है वहां पर जो है मूवमेंट जो है और एक्टिविटीज है वो उसी हिसाब से चलेंगी। देखिए, ऐसा है कि मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके कार्यालय नई दिल्ली के क्षेत्र में आपका आई कार्ड ऑनर किया जाएगा, आप मेट्रो सेवा का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपके पास G20 सम्मेलन, शिखर सम्मेलन के लिए मान लीजिए आप कहें मैं भारत मंडपम के नजदीक जाता हूं, वहां जो सुरक्षा जांच और रिस्ट्रिक्शन है उनकी आपको पालना करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वहां का एक्रेडिटेशन नहीं है तो वहां की एक्सेस आपको नहीं दी जाएगी। एक सवाल सर बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग बसों से या ट्रेन से दिल्ली आएंगे या उनको जाना है, तो क्या उनको रेलवे स्टेशन से या बस से टैक्सी और ऑटो मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आप रेलवे स्टेशन से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से सभी जगह, हमने कहीं नहीं कहा है कि कोई रेलवे स्टेशन प्रभावित होगा। वहां से आपको टीएसआर, ऑटो, टैक्सी है, आपको जाना है, आप हमारी यातायात निर्देशिका में देखिए। आप पूर्वी दिल्ली से अगर आप पश्चिमी दिल्ली जाना चाहते हैं तो नई दिल्ली का जो नियंत्रित क्षेत्र है उसको बाईपास करके
जो है अल्टरनेटिव रूट्स दिए गए, इसी तरह से उत्तर से दक्षिण, क्योंकि रिंग रोड चलता रहेगा, आउटर रिंग रोड भी चलता रहेगा, तो आप आराम से जो है दिल्ली के किसी भी कोने में अपने किसी भी साधन से जा सकते हैं। नियंत्रित क्षेत्र के अंदर से आप जाना चाहें, जो हमारी अमूमन जो है कि हम इंडिया गेट होकर जाते थे, उस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी अनलेस एंड अनटिल आपको स्पेसिफिक आपके पास कोई वैलिड रीजन है नई दिल्ली आप नियंत्रित क्षेत्र के अंदर जाने के लिए, उन लोगों को आने दिया जाएगा जब भी जो भी सुरक्षा नियम है उनकी पालना करते हुए। Sir, will on-road parking facilities be restricted for private vehicles or there have been designated parking spots? देखिए वो तो वट एवर इज द लॉ ऑफ द लैंड, इफ इट्स इम्प्रॉपर इट्स इम्प्रॉपर, इट डजंट चेंज नाउ एंड इट विल नॉट चेंज इन फ्यूचर, सो इफ इट्स इम्प्रॉपर इट इज इम्प्रॉपर। Thank you. आप यातायात निर्देशिका पढ़िए, बिल्कुल क्लियरली उसमें मेंशन किया है। इसके अलावा मैं आपको एक और दोबारा जो है दोहरा देता हूं कि जो मैप माई इंडिया की मैपल ऐप है उसको भी डाउनलोड कीजिए। वो आपको किसी भी साधन से अगर आपको जाना है तो वो आपको एक जो नियंत्रित क्षेत्र है उनको डाइवर्ट करके बाकी जो अल्टरनेटिव रूट्स हैं वो आपको देंगे। थैंक यू।